Hello everyone. This is day 13 of your 30 days to crack CSAT program. Today we would be covering cubes and cuboid which is part of logical reasoning. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे रिसेंट कुछ ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. बहुत ही ईजी एंड पे है. देखते हैं इसको कैसे कवर करना है. Now, this is our 30 days of plan. We have covered till number of zeros. आप मुझे बताओ ये 12 सेशन जो हो चुके हैं इस पे आपको क्लैरिटी है हाँ या ना. इसके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं PYQs yes or a no. Today we are here day 13th. We would be doing cubes and cuboids and all the topics that we have coming forward जैसे it's calendar, clock, linear equation, set theory. छोटे टॉपिक्स हैं बट लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. डेफिनेटली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. लीनियर इक्वेशंस, क्लॉक कैलेंडर एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है. डेटा सफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबल है कि पूछा जाएगा ही. तो अभी जो आने वाले सेशंस हैं, अभी जितने सेशंस हुए हैं वो इंपॉर्टेंट थे, ये होने वाले हैं ये भी और इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप मिस आउट मत करना. ऑल्सो दिस इज वन ऑफ आवर प्लेलिस्ट wherein I have discussed each of the PYQs in a detailed manner. मतलब we also have a section wherein we have discussed these PYQs as part of one question at a time. आप बहुत लोगों ने उसको फॉलो भी किया और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिला है. बट इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ ईयर अलोंग पेपर्स यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट. ये प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा. अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ आवर लेक्चर्स plus this PYQ discussion would definitely help you boost a lot of confidence. Plus we have predicted some of the questions in the previous years जैसे 2024 में 2025 में 35-37 questions. उनका ये detailed solution proof video है. आप इसको भी go through एक बारी कर सकते हैं. These questions were basically part of our full length test and practice sets that we provide as part of the paid course. Now, starting with cutting of a cube. मान लो ये देखो ये दिस लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड. मैं यहाँ पे बस आपको कटिंग सिखा रहा हूँ. सो व्हेन आई पुट वन कट ओवर इट तो इसका ये मतलब है कि यू हैव टू पास थ्रू दैट ऑब्जेक्ट. सो इफ आई कट दिस, मान लो एक कट आपने ऐसे लगाया, इसके दो पीसेस हो जाएंगे. सो वेन एवर यू पुट वन कट इट विल डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू टू पीसेस. अगर मैं दो कट लगाऊं तो मिनिमम तीन पीसेस होंगे. एक कट दो कट तीन पीसेस हो गए. If I put three cuts, 1, 2, 3, I would be getting 4 pieces. ये general idea है. But if I ask you कि what is the minimum number of cuts needed? Minimum cuts needed to cut a cube into maybe 27 smaller cubes. We have a larger cube. उसको 27 स्मॉल क्यूब्स में कट करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स नीडेड. और 27 एक बड़ा नंबर है, आपको भी विजुअलाइज करना स्टार्ट करना है. लेट्स डू इट विथ मे बी 8 स्मॉलर क्यूब्स. कि मान लो आप कितने ऐसे कट्स लगाओगे जिससे 8 स्मॉलर क्यूब्स बन जाए. आप बोल सकते हो कि सर आई कैन पुट मे बी 7 कट्स अलोंग द सेम एक्सिस. एक ऑब्जेक्ट पकड़ो ऐसे, 7 cuts लगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Definitely it will have 8 pieces. But I am asking what is the minimum number of cuts? Minimum क्या 7 है? बिल्कुल भी नहीं है. आप 7 से lesser number of cuts पे भी 8 pieces बना सकते हो. And what is that number of cuts? वो मुझे बताओ कि क्या होगा. That is what I am trying to ask. तो यहाँ पे it is all about the concept of distributing our cuts among the various axes. So we have three axes. This, let's suppose this is the y axis. This becomes the x axis. मतलब बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा x axis. तो मैंने एक कट अगर ऐसे लगाया I would be getting 2 pieces. If I put one cut here I would be getting 4 pieces. ऐसा होगा, सोच के देखो. It is all about visualizing. कि आपने एक कट लगाया you get 2 pieces. You make another cut like this. Clear है? You would be getting 4 pieces. But this has some thickness or height. अगर मैं उस height के along भी लगाऊं which is the z axis, I would be getting 4 more pieces. So in just 3 cuts, I can get 8 smaller cubes. कैसे करना है? ध्यान देना, समझना. Let's suppose this is our block of solid. Solid block है ये मेरा. All right. Now I'll try to put one cut at the top of it. तो एक कट कुछ ऐसा दिखेगा. ये बात समझ में आ रही है? मैंने इस तरीके से कट करा. अभी आपको कितने पीसेस दिख रहे हैं? 2 पीसेस दिख रहे हैं.
मैं बोल रहा हूँ लेट्स चेंज द एक्सिस, लेट्स पुट अनदर कट फ्रॉम हियर, अगेन आई एम गेटिंग a total of 4 pieces, 2 cuts, 4 pieces. What if I put one cut here? ये वाला जो कट था ये z एक्सिस के अलॉन्ग था। अब आपको दिख रहे हैं ये जो सॉलिड है इसको 2 फ्लोर्स में बांट दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 फ्लोर्स। ईच फ्लोर हैज 1 2 3 4 4 स्मॉलर क्यूब्स, below one also has 4 smaller cubes. In total they have a total of 8 cubes. I hope you got the clarity. But अगर मैं इसको नंबर ऑफ क्यूब्स को बड़ा कर दूं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कट्स भी इंक्रीज होंगे, तो उस समय विजुअलाइज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देन हाउ डू वी लुक एट दिस क्विकली? सो वी हैव a basic scenario which is dividing the number of cuts along the 3 axes that we have. Let's say this is the x-axis, this is the y-axis and this is the z-axis. मेरे पास कितने कट्स थे? 3 कट्स, राइट? अगर आपको मैक्सिमाइज करना है अपने नंबर ऑफ पीसेस तो आप इस 3 कट्स को जितना यूनिफॉर्मली हो सकता उतना डिवाइड करो। सो आई डू 1 कट हियर, 1 कट हियर एंड 1 कट हियर, जैसा अभी मैंने किया। तो ये ग्रीन लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं वो कट्स को। What is the number of pieces along the same axis? I would be getting, अगर एक कट लगाओगे तो एक और पीस बनेगा, so I would be getting 2 pieces. Here also I would be getting 2 pieces. Here also I would be getting 2 pieces. In total, what is the number of pieces? Is it 6 or is it 8? 8 pieces. How do you get to 8? You multiply. So what is the number of pieces? We get 8 pieces. And how do we do that? With the help of, this is the maximum number of pieces. कैसे करना है? Uniform distribution. Uniform as possible. Uniform distribution of cuts. क्या मतलब है इसका? कि अगर मान लो मैंने यहां पे एक और सॉलिड अज्यूम करा, ये सॉलिड है, मेरे पास 3 कट्स थे। इफ आई पुट ऑल दीज 3 कट्स अलोंग द सेम एक्सिस, जैसे 1 कट, 2 कट, 3 कट, अब आप बताओ ये कितने बने? You only get 4 pieces. If you put 3 cuts along the same axis, you would be getting 4 pieces. 4 slices बन गए, हाँ, ये ना, 1 2 3 4। तो अगर मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा along the 3 axis, I won't be able to maximize my number of cuts. That is the concept behind it. If you want to maximize your number of cuts, you have to divide. If you want to maximize your number of pieces, you have to divide the number of cuts along the 3 axes as uniformly as possible. इसको और elaborately समझने के लिए आप एक दो और एग्जाम्पल से इसे समझो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि आपको चाहिए, आपने 2 कट्स लगाए along the all axis. What could be the number of pieces? You put 2 cuts, 2 cuts and 2 cuts. What is the number of pieces? Respectively 3 pieces, 3 pieces and 3 pieces. What is the final number of pieces? Take a product of this, 3 into 3 into 3, 27 cubes. Done. तो अगर मैं टोटल 6 cuts लगाऊं, 6 cuts would give me 27 pieces. कैसे देखना है इसे, ये भी चेक कर लो आप। नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, जैसे ध्यान देना, I need to do 2 cuts. So I'll do the first one, the second one, है ना, 2 कट हो गए। 2 कट हुए तो कितने पीसेस बन गए? आपको क्लियरली दिख रहा है 3 पीसेस हुए। अभी कट्स को चेंज करो, इस तरफ लगाओ, और कट्स को चेंज करो, एक्सेस चेंज करो बेसिकली। सो यू वुड बी गेटिंग 3 3 3। कितने फ्लोर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 1 2 3 फ्लोर्स। पिक एनी फ्लोर। अगर मैं इस फ्लोर की बात करूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल पीसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 हियर, 9 हियर एंड 9 हियर, अ टोटल ऑफ 27 क्यूब्स। क्या ये क्लियर है कि कैसे देखना है कटिंग ऑफ क्यूब? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक डायग्राम दैट वी हैव। क्लियर है? सो 3 into 3 into 3 pieces would give you 27 cubes and this is possible by 2 cuts, 2 cuts, 2 cuts. इसी तरीके से आपको कट्स को हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना यूनिफॉर्म हो पाए। That is the idea behind getting maximum number of pieces with minimum number of cuts. Okay, we have a question.
all the opposite faces of a big cube are colored with red, green and blue. After that it is cut into 27 small cubes. अभी आपने देखा था. How many small cubes are there whose only 3 faces are colored? Okay, regarding a cube, कुछ और बेसिक बातें हैं, उस पर भी एक बारी काम कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट थिंग, suppose this is our cube, right? So if you look at any cube, what are these known as? These are the corners. कितने corners होते हैं? आप बोलोगे there are 8 corners. ठीक है? There are 8 corners. Okay. How many faces does a cube have? This is one of the faces. Second, third, fourth, fifth. जैसे एक डाइस, डाइस भी एक जनरली एक क्यूबिकल डाइस होता है. कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, नंबर्ड 1 to 6, स्टैंडर्ड 1. So faces of a dice or cube are basically six faces. Now these lines that connect two corners, ये जो लाइन है जो दो कॉर्नर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, these are known as edge or vertices. These are 12 in number. अगर आप काउंट करोगे, the line connecting two corners is basically edge and there are 12 edges. ठीक है, these are all the edges. I hope you got a rough clarity regarding the cubes part. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. I need 27 small cubes. So first let's try to prime factorize 27. 27 को मैं prime factorize करूंगा तो I know it is 3 into 3 into 3. And last में अगर ये product हो रहा है तो I understand this is the number of pieces. So if this is the number of pieces, what should be the number of cuts? -1. So 2 cuts, 2 cuts and 2 cuts. Okay, so whichever cube we have, let's say we have this. मुझे कितने कट्स लगाने हैं? 2 cuts, 2 cuts, 2 cuts along the 3 axis. Okay. टू कट्स लग गया. लेट्स चेंज द एक्सेस. 1 cut, 2 cut, 1 cut, 2 cut. Please tell me what is the number of cubes here. If you look closely, the number of cubes is basically 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 on each floor. And these are painted with red. So we have red, green and blue on the opposite sides. तो red अगर सामने है तो बिल्कुल ऑपोजिट फेस पे, वो दिखेगा नहीं, वो इस तरफ की बात हो रही है. ग्रीन टॉप पे और बॉटम पे होगा, ब्लू इस तरफ है और इसके ऑपोजिट पे होगा. नाउ it is then cut into 27 small cubes. All right, how many small cubes are there whose only or exactly 3 faces are colored? Now 3 फेस कलर्ड होने का क्या मतलब है? आप अगर इस पर्टिकुलर क्यूब की बात करो, इस वाले की बात करो, ठीक है, तो क्या इसमें 3 फेसेस पेंटेड है? इसमें सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड होंगे. ये वाला ग्रीन कलर में पेंटेड है और ये रेड कलर में पेंटेड है. ये बात समझ में आ रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्यूब. क्लियर है? बट we need a cube which has 3 faces painted. This is only possible at the corners. So exactly 3 faces painted are the cubes at the corners. And how many corner cubes do we have? We have 8 corner cubes. तो इसका simple answer हो जाएगा corners, and each corner we get 1 cube. So number of corners 8. 8 into 1, we get 8 such cubes. So out of 27 cubes, there are only 8 such cubes which have exactly 3 faces painted. Is there any cube which has 4 faces painted? 0. 4 faces painted, 5 faces painted, or maybe 6 faces painted. कोई ऐसा क्यूब है क्या इनमें से जिसके 6 के 6 फेसेस पेंटेड है और 4 के 4 faces, 4 out of 6, 5 out of 6? No, we have 0 such cubes. Now, same question, same data. How many small cubes are there whose only 2 faces are painted? Only 2 faces आपने देख लिया था, वो सेंटर पे आता है. चलो देखते हैं. वापस से मैं क्विकली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि आपको इसकी क्लैरिटी आ जाए. आप भी ड्रॉ करना स्टार्ट करो. देखो कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है.
All right. Now we have our cube with us. Only two faces painted. Are the cubes right here? ये वाले वो cubes हैं, ये वाले वो cubes हैं ना, सिर्फ दो faces painted हैं. ये वाले वो cubes हो सकते हैं, सिर्फ दो faces painted. ये वाले वो cubes हो सकते हैं जिनके सिर्फ दो faces painted हो रहे हैं. क्लियर है क्या? दिस इज अलोंग द एजेस. सारे एज पे देयर आर 12 एजेस, है ना. एजेस आर द लाइंस कनेक्टिंग टू पॉइंट्स. इस एज पे ये वाला एलिमेंट हटा दो, ये वाला एलिमेंट हटा दो, यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन एलिमेंट. एंड टू फेसेस इज बेसिकली अपॉन द एजेस. सो नंबर ऑफ एजेस एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट ऑन टू ईच एज. So there are 12 edges and on each edge I'm just getting one such cube. Therefore this is 12. Clarity है, follow कर पा रहे हो? Okay. Now if I ask you whose only one face is painted, one face is painted का क्या मतलब है? ये मतलब है इसका that we have ये मैं क्यों आपको ड्रॉ करवा रहा हूं बार बार. एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट एज सून एज आई ड्रॉ दिस आप भी इसको ड्रॉ करो और इससे फेमिलियर हो जाओ. हुज ओनली वन फेस इज पेंटेड. दिस इज दिस सेंटर क्यूब, ये वाला, ये वाला, ये वाला. तो दे हैव 6 faces, so only one face painted is along the faces of cube. Faces into the number of times. How many faces does a cube have? 6, and on each face we get such one such cube. So there are 6 such cubes. अब अगर आपने फॉलो किया है और मैं इसको यहां पे कैटेगराइज कर रहा हूं, ओनली 3 फेस पेंटेड. कितने क्यूब्स आ रहे थे अलोंग द कॉर्नर्स? तो 8 हो गए. ओनली और एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड अलोंग द एजेस, सो 12. ओनली और एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड, वी गेट 6 into 1 6. व्हाट इज द सम टोटल ऑफ दिस? 26 क्यूब्स. टोटल कितने होते हैं क्यूब्स? 27. यहां पे आंसर 26 क्यों आ रहा है? इसका मतलब है एक ऐसा क्यूब है जिसको चाह के भी आप पेंट किसी भी साइड पे नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट एग्जैक्टली इज द क्यूब एट द सेंटर ऑफ इट. ये एक 3D फिगर है. इसका सेंटर वाला जो क्यूब होगा, देयर आर 27 क्यूब्स, डिवाइड देम इनटू डिफरेंट फ्लोर्स. आप फर्स्ट वाले फ्लोर पे सेंटर एलिमेंट पे नहीं जा सकते हो, सेकेंड वाले के सेंटर एलिमेंट की बात कर रहा हूं. यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3. इस पे पेंट हो जाएगा, उस पे भी पेंट हो जाएगा, इस पे भी पेंट होगा, इस पे भी पेंट होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर वन, द एग्जैक्टली एट द सेंटर. एग्जैक्टली एट द सेंटर वी हैव जस्ट वन क्यूब, and this is present in the second floor. Second floor middle element is surrounded by other cubes from all sides. So no face painted, no face painted, no face painted is basically in the middle, second floor, and that is just one cube, and in total we have 27 cubes. अब क्लैरिटी आ गई कि कैसे देखना है. अब इसी चीज पे अगर मान लो मेरे से पूछ लिया जाए कि देर आर 64 क्यूब्स, तो आप 64 को कैसे लिखोगे? 64 को आप लिखोगे 4 into 4 into 4. ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आना चाहिए. ये अगर क्लियर है तो आप देखो 4 पीसेज अगर आ रहे हैं, then the number of cuts would be one less. So 3 cuts, 3 cuts, 3 cuts, a total of 9 cuts. तो 9 cuts पे I would be getting basically 64 pieces. कैसे करना है चेक करते हैं. सिंपल डायग्राम. मुझे रखने 3 cuts, 3 cuts, 3 cuts. So first, second, third, just elongated. 3 cuts along one axis हो गया. दूसरे एक्सिस पे आ जाओ. 1, 2, 3. इसको एक्सटेंड कर दो because that is how you would be cutting it. ठीक है. 1, 2, 3. क्या आपको टोटल 64 दिख रहे हैं? आप इसको फ्लोर में, हमेशा फ्लोर में डिवाइड करने की कोशिश करो. लुक एट दीज क्यूब्स एज पार्ट ऑफ फ्लोर्स. सो वी हैव हाउ मेनी फ्लोर्स? 1, 2, 3, 4 फ्लोर्स, एंड ईच ऑफ दीज फ्लोर्स हैज हाउ मेनी क्यूब्स? सो आप ये वाला काउंट कर सकते हो इन टोटल, or you can count this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 cubes, 16 cubes, 16 cubes, 16 cubes. कितने हो गए टोटल? 64 cubes. बात समझ में आ रही है?
क्लैरिटी है क्या कैसे देखना इन क्वेश्चंस को? अब अगर मैं 16 वाले पे आपसे पूछ लूं हाउ मेनी क्यूब्स हैव एग्जैक्टली यू नो 3 फेस पेंटेड, तो आई एम लुकिंग एट द कॉर्नर वंस, आई एम लुकिंग एट द कॉर्नर वंस, तो 8 होंगे. How many cubes have exactly two faces painted? So along the vertices, if you take out the corner ones, you are left with these two. तो इन दोनों की बात हो रही है. तो we have 12 vertices or edges, and each edge has two such cubes, so it would be 24. अगर मैं बात करूं exactly one face painted, so that exactly one face painted is this cube, this, and this one, or this, and this. So along the faces, into the number of times faces are 6 and every faces we have 4, so 24. बात समझ में आ रही है कैसे देखना है कैसे कवर करना है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आपको अगर एक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसके बेसिस पे आप ऐसे नो फेसेस पेंटेड. नो फेसेस पेंटेड का मतलब क्या है? सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स ऑन ऑल साइड्स. दैट्स द आइडिया बिहाइंड नो फेस पेंटेड. तो कितने होंगे? आपने अगर इस तरीके से ड्रॉ किया, देखो मैं बहुत जल्दी बना रहा हूं डायग्राम, है ना, तो बिल्कुल मिडिल वाले फ्लोर पे ही वो पॉसिबल है. मिडिल वाले फ्लोर पे सेंटर वाले एलिमेंट पे, बिकॉज साइड साइड पे तो पेंट हो रहा है. दिस इज द एलिमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट एट द सेकंड फ्लोर, नॉट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, बिकॉज दिस इज पेंटेड. आप जब पेंट करना स्टार्ट करते हो तो आप इस तरीके से पेंट करोगे, ऑल द आउटर लेयर इज पेंटेड but the center ones are not painted. It is surrounded by other cubes on all sides. So in the second floor of these 3 floors that we have, the middle element will be surrounded by every other on all the sides, and therefore that is a cube with no face painted or colored, and that is just one such cube. In 27 smaller cubes there is just one cube. और आपने देखा यहाँ पे वो कितने होंगे, यहाँ पे कितने हो सकते हैं? तो ये 1 2 3 4 वाले यहाँ पे और यहाँ पे 2 फ्लोर्स पे, तो टोटल 8 हो जाएगा. एंड दैट्स द बेसिक आइडिया. ओके, एक बारी क्विकली देख लेते हैं कि अगर 27 क्यूब्स हैं तो आप उसको कैसे लिखोगे. तो आप बोलोगे पीसेज इज बेसिकली 3 into 3 into 3, and therefore cuts would be 1 less, so 2 2 2. कट्स कितने हो जाएंगे टोटल? द टोटल नंबर ऑफ कट्स वुड बी 6 कट्स. 6 कट्स पे आपको मिलेंगे 27 क्यूब. 6 मिनिमम कट्स पे मिल जाएंगे. ओके, लेट्स ड्रॉ दिस क्विकली. वन कट, टू कट, वन कट, टू कट, वन कट एंड टू कट. मिल गए 27 क्यूब्स. चेक कर लो. अब इस पे आ जाओ 64 पे. पीसेस कितने होंगे? तो पीसेस होंगे 4 into 4 into 4, और पीसेस का मतलब है कट्स कितने हुए होंगे? तो एक कम, सो इट वुड बी 3 कट्स प्लस 3 कट्स प्लस 3 कट्स, सो टोटल ऑफ 9 कट्स. 9 कट्स पे मुझे 64 मिनिमम क्यूब्स मिल जाएंगे. अब इसको कैसे ड्रॉ करना है ध्यान से देखना. नॉर्मल है, आपको लगाने हैं 3 कट्स. पहले एक इस तरीके से आप फिगर बना लो. अब 3 कट्स लगाओ. सो यू टेक 1 कट, 2 कट्स, 3 कट्स. ये कट इस तरीके से एलोंगेट होने चाहिए सेम एक्सिस पे. ये आपने देखो 3 कट लगा दिए. अब 3 कट एक्सिस चेंज करके लगाओ. 1 कट, 2 कट एंड द थर्ड वन. एक्सिस चेंज करो. 1 कट, 2 कट एंड द थर्ड कट. बन गए आपके 64 क्यूब्स. 125 करना है. 125 is basically pieces as 5 into 5 into 5. The number of cuts would be -1, so 4 plus 4 plus 4, which is 12 cuts. 12 मिनिमम कट्स पे मेरे कितने पीसेस बनेंगे? 125 पीसेस बनेंगे. बहुत बड़ा नंबर है. चलो देखते हैं कैसे बनाना है. मुझे लगाने 4 कट्स, ध्यान रखना. 1 2 3 4. 4 कट्स लग गए. 1 2 3 4. 1 2 3 एंड अ फोर्थ वन. फॉलो कर पा रहे हो? इस तरीके से यू वुड बी गेटिंग
all these cubes. क्लैरिटी है? अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर देखो मैं 3 फेसेस पेंटेड इसमें भी पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्नर वाले, 8 हो जाएगा 3 फेसेस पेंटेड. अब अगर मैं पूछूं एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड तो आपको दिख रहा है ये वाले क्यूब्स अलोंग दिस लाइन 1 2 3 ये वाले. सो 12 into 3, 12 लाइन्स है एंड ईच लाइन हैज 3 सच क्यूब्स, सो 12 into 3. ये तरीका है इसको देखने का. Now let's look at the PYQ question from the year 2018. क्या आप इसको ट्राई कर सकते हैं? प्लीज क्विकली टेल मी द आंसर बिकॉज विद दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन आई होप अब आपके PYQ क्वेश्चन नहीं रुकेंगे वाले, आप इनको आराम से बना सकते हो. A solid cube of 3 centimeter side painted on all its faces, it's then cut into small cubes of 1 centimeter side. 1 centimeter side का क्या मतलब है? मान लो एक ऐसा ब्लॉक है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज 3 सेंटीमीटर, मैं 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 2 कट लगाऊंगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. तो मैंने कितने कट्स लगाए यहाँ पे? 2 कट्स लगाए. तो 2 कट्स 2 कट्स 2 कट्स का क्या रिजल्ट होता है आपको भी पता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. 2 cuts 2 cuts 2 cuts would give you 3 pieces 3 pieces and 3 pieces, and in total it would be 27 pieces. बोलो बात समझ में आ रही है क्या? How many small cubes will have exactly 2 faces painted? Exactly 2 faces painted भी आपको पता है कि किस तरफ देखना होता है. 2 faces, exactly 2 faces painted, you have to look at the edges. अब आप जल्दी से इसको बनाओ. कितने 2 कट्स लगाने हैं? सो दिस इज द फर्स्ट कट, सेकेंड कट, फर्स्ट कट, सेकेंड कट, फर्स्ट कट, सेकेंड कट. एग्जैक्टली 2 फेसेस पेंटेड इज दिस. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से अलोंग द वर्टिसेस. सो दिस इज अलोंग द एजेस इनटू द नंबर ऑफ टाइम्स. एजेस आर 12 इन नंबर एंड ईच एज पे ऐसे एक ऐसे मिल रहे हैं, तो देयर आर 12 सच क्यूब्स. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट फिट. अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, बट व्हाट आई नीड इज कि आप पहले इसको समझ लो अच्छे से, कि यू हैव दैट क्लैरिटी कि कैसे आपको ये डायग्राम बनाना है, कैसे क्वेश्चन को देखना है, क्या पूछा जा रहा है. तो आपको कभी क्लैरिटी रहेगी तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. द आउटर सरफेस, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2017. आई होप यू कैन ऑलवेज ट्राई सच प्रॉब्लम्स. 4 सेंटीमीटर है, मैं बोल रहा हूँ 4 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करोगे तो कितने कट्स लगेंगे? 3 कट्स लगेंगे, हाँ या ना? 1 1 1 1, 4 डिवाइड हो गया इंटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स. कितने कट्स लगे? 3 कट्स. सो 3 कट्स अलोंग ऑल द 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. सो बना लो डायग्राम. ये बन गया. अब आपको लगाने 3 कट्स. कट नंबर 1, कट नंबर 2, कट नंबर 3. अब इसको एक्सटेंड करो बिकॉज दैट इज हाउ यू पुट वन सच कट अलोंग दैट पर्टिकुलर एक्सिस. एक कट इस तरीके से लगेगा पूरा. एक कट, 2 कट, 3 कट लग गए. नाउ 1 कट, 2 कट एंड द थर्ड वन. 1 कट, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन. डन. नाउ हाउ मेनी फ्लोर्स डू वी हैव? 1 2 3 4 फ्लोर्स. इसको देखो हमेशा, अगर इस पे प्रॉब्लम आ रही इसको देखो, फ्रंट फेसिंग पे देखो. क्या 4 फ्लोर्स दिख रहे हैं? यस. ईच फ्लोर हैज हाउ मेनी क्यूब्स? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 16. कितने हो गए? 64 सच क्यूब्स. ओके, क्या पूछा है? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस और नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड, या फिर सराउंडेड by other cubes on all sides. Surrounded by other cubes on all sides. यही तो है. अब आप देखो, क्या फर्स्ट वाले फ्लोर पे और लास्ट वाले फ्लोर पे ये पॉसिबल भी है कि उसके एक भी फेसेस पेंटेड ना हो? आप जब पेंट करना स्टार्ट करोगे किसी भी सॉलिड को, तो आप इसके सारे फेसेस को पेंट करोगे एंड दैट इज व्हाट इज गिवन. द आउटर सरफेस इज पेंटेड, right? When it is painted, so we cannot have no face painted from the first floor and the last floor. It is always in the middle floors. तो middle में कितने floors हैं? There are 2 floors. Every floor has how many such cubes which is surrounded by every other cube from all the sides? तो आप देखो 1 2 3 4.
if I'm talking about these 4 cubes in the second floor and the third floor, so I'm talking about a total of 4 plus 4, 8 cubes. 8 cubes are actually surrounded by all other cubes and they are not painted. Option A again is the correct fit. Clear है? चलो एक क्वेश्चन आप खुद से बनाओ. Let me know in the comment box what is the correct fit for this. A cube has all its faces painted with different colors. It is cut into smaller cubes of equal size such that the size of the small cube is 1/4 the big cube. 1/4 the big cube का क्या मतलब है? क्या breaking down the given value or side into how many cuts. अगर ये इस तरीके से 4 पे है, 1/4 करने का मतलब क्या है? 1/4 इज 1 1 1 1 1 1 1 1 तभी आएगा ना जब आपने 1 कट, 2 कट और 3 कट लगाए हैं. ये बात समझ में आ रही है? या अगर मान लो मैंने 8 ले लिया, 8 इज द साइड, 1/4 ऑफ दिस वुड बी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कितने कट लगाओगे? 1 2 3. यही आइडिया है. अब बात समझ में आ गई कि दिस क्यूब वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 3 कट्स ऑन ऑल द 3 एक्सेस. 3 cuts on all the 3 axes would give me 3 cuts. Okay, so first, second and third. First, second and third. First, second and third. अब क्या पूछा है आपसे? We got 64 cubes. The number of small cubes with only one face painted. Only one face painted is along the faces into the number of times. Along the faces. कितने फेस हैं? 6 faces हैं. Each face पे ऐसे कितने cubes है जिसका सिर्फ एक face painted है? These are the cubes. Outer वाले सिर्फ यही face तो painted है, बाकी अंदर वाले कोई भी face painted नहीं है. So 4 along the 6 faces, so 6 into 4 we get 24 such cubes. Option B, this is part of 2016. High chances है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए. क्लियर है? प्लीज टेक दिस डाउन क्विकली. लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर. और आई गेस आपने भी इसको कमेंट कर दिया होगा. नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2024, रीसेंट क्वेश्चन. और इस तरीके के भी आने के बहुत ज्यादा अभी चांसेस है. व्हाट इज द लीस्ट possible number of cuts, least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical cubes. तो आप देखते हो 64 identical pieces. pieces में अगर 64 आ रहा है, 64 can be written as 4 into 4 into 4. If this is the pieces, then what is the number of cuts? The cuts is actually 1 less, so 3 cuts plus 3 cuts plus 3 cuts. And that is 9 cuts. Option B. Clear है? The same idea जो यहाँ पे किया. आपने 3 कट लिए तब तो जाके 64 क्यूब्स बने टोटल. इसको अगर आप काउंट करोगे, दिस इज अ टोटल ऑफ 64 क्यूब्स. यस और नो? क्लियर है? कैसे करना है? सिंपलर एंड पे है. आपको कटिंग ऑफ क्यूब का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए अलोंग द 3 एक्सेस. अगर वो क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं चेंज कर दूं, लेट्स सपोज 3 कट्स, टोटल 9 कट्स हैं. इस 9 कट को अगर मैं ऐसे करूं कि आई विल पुट मे बी 6 कट्स हियर, 2 कट्स हियर एंड 1 कट हियर. So am I distributing the number of cuts evenly or uniformly? क्या मैं uniformly distribute कर रहा हूं? Uniform distribution का ये मतलब है कि as equal as possible. If I have 9 and I want to divide it into 3 people, I can divide them into 3 3 3. अगर मेरे पास 10 है तो भी मैं 3 3 3 करूंगा. एक एक्स्ट्रा होगा वो मैं किसी को भी दे सकता हूं. दैट इज यूनिफॉर्म. बट ये बोला कि 6 और 2 और 1 ये यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है. तो इससे क्या होगा? आपके जो पीसेस हैं वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे. आप चेक कर लो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ पीसेस हियर. द पीसेस वुड बी 7 पीसेस, 3 पीसेस एंड 2 पीसेस. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस? 7 3s are 21. 21 into 2 is basically 42. 42 pieces. टॉप पे कितने पीसेस बन रहे हैं? 64 पीसेस. आप बताओ कौन सा मैक्सिमम हो रहा है नंबर ऑफ पीसेस पे? पहला वाला. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कट्स.
आपके कट्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अलोंग द 3 एक्सिस, तभी जाके यू वुड बी गेटिंग these many maximum number of cubes. Okay, what is the least possible number of cuts needed to make a cube into 720 equal small size pieces? This is a homework question. High chances हैं कि ये आपसे पूछा जाए. This is from our practice sheet. Please give it a try. 720 का क्या मतलब है? आपको 720 को पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा. 720 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, देखो उसको कैसे लिख सकते हो. क्या मैं 720 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 72 इज 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, और ये क्या बन गया 10. अगर ये ऐसा है तो पीस कट्स क्या होने चाहिए? कट्स एक कम होना चाहिए, तो 8 कट्स, 7 कट्स, 9 कट्स. व्हाट इज द टोटल नंबर? 8 7 15, 15 और 9 24, 24 कट्स आ गए. और यहाँ पे एक 18 भी है, तो आपको चेक करना है क्या 18 कट पे आप ये नंबर पे जा सकते हो. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपने अपने कट्स को बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है. इससे और यूनिफॉर्म ये हो नहीं सकता है. अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो मे बी 888, तो 720 शायद नहीं आएगा, है ना. देन इट वुड बी अ डिफरेंट नंबर. तो 720 पीसेस के लिए व्हाट आई फील दिस इज द करेक्ट फिट. कैसे करना है आपको भी क्लैरिटी आ गई कि किस तरीके से. इट इज ऑल अबाउट प्राइम फैक्टराइजिंग इट फर्स्ट and then looking at the number of cuts. चलो, question from 2023. 125 identical cubes. 125 का क्या मतलब है? If there are 125 pieces, it means it is 5 into 5 into 5. Therefore, we get 125 pieces. The cuts would be one less, so 4 cuts, 4 cuts, 4 cuts, a total of 12 cuts. Now, are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? Surrounded by other cubes from each side is just another way of saying no face painted. हाँ या ना? इसी के बारे में तो बात कर रहा है, नो फेस पेंटेड. नो फेस पेंटेड पे क्या करना होता है? चेक करो, आपको 4 कट लगाने हैं. 4 कट्स. ऑल राइट. सो कट नंबर 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ठीक है. Surrounded by other cubes from all the sides, cannot be on the first floor and the last floor. ये 3 फ्लोर्स पे होगा. ये 3 फ्लोर्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मतलब अभी एक आप ऐसे देखो, एक पर्टिकुलर फ्लोर को देखो इस तरीके से, तो आपको क्या दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ऐसे क्यूब्स हैं, हाँ या ना? 9 ऐसे क्यूब्स हैं जो सेकंड वाले फ्लोर पे है, थर्ड वाले फ्लोर पे है, फोर्थ वाले फ्लोर पे है. ईच फ्लोर हैज 9 सच क्यूब्स, so it would be 9 cubes, 9 cubes, 9 cubes, a total of 27 cubes, which are surrounded by other cubes from all sides, and therefore no faces would be painted in them. It has got everything to do with your visualization. अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे. इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है. द फॉर्मूला इज n minus 2 whole cube. n here is 555, so 5 minus 2 whole cube. ये 3 क्यूब आएगा. 3 क्यूब इज 27. दूसरा तरीका क्या? अगर मान लो ये देखो n n n तीनों सेम है, इसलिए यहाँ पे होल क्यूब आ गया. आइडियली इट इज 1 2 3. सो मतलब जो भी नंबर ऑफ पीसेस बन रहे हैं आप वो लिखते हो -2 into the second one -2 into the third one -2. But since this is 5 everywhere, तो it becomes 5 minus 2, 5 minus 2, 5 minus 2. मतलब आपको ऐसे लिखना होता है, ऐसे 5 minus 2. सेकेंड वाले पे 5 है तो 5 minus 2. नेक्स्ट वाले पे 5 है, 5 minus 2. तो ये सेम वैल्यूज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसीलिए आपको इसको शॉर्टकट में लिखना है n minus 2 होल क्यूब और 5 minus 2 होल क्यूब. दैट इज द आइडिया. अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो इट वुड बी 5 minus 2, 6 minus 2, 7 minus 2. That's the idea for finding no face painted. Clear है? चलो. Again, a good question from 2023. दरअसल लेंदी दिख सकता है, बट इसका सोल्यूशन काफी स्मार्ट है और आप इसको जल्दी बना सकते हैं.
A cuboid of dimension 7, 5 and 3 is painted in red, green and blue color on each pair of opposite pairs of dimensions 7, 5, 5, 3, 7, 3 respectively. Then the cuboid is cut and separated into various cubes, each of length 1 centimeter. Which of the following statements are correct? There are exactly 15 cubes with no face painted on any face. चलो देखते हैं. 7, 5 और 3 है, तो मैं इसे पहले ऐसे बना लेता हूं. 7 के लिए मैं जरा इसे एक्सटेंडेड बना रहा हूं. 7 and then you have a 5. ओके, तो मैं पहले इसको 7 करने की कोशिश कर रहा हूं. 7 के लिए मुझे कितने कट्स लगाने होंगे? मुझे 6 कट्स लगाने होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो अब 7 पीसेस बन रहे हैं क्या? यस. इस कट्स को बस एलोंगेट कर दो. चलो 7 वाला पार्ट हो गया. 5 वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा? 4 लगाने होंगे कट्स. सो फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट एंड द फोर्थ कट. चलो ये भी हो गया. 3 सेंटीमीटर के लिए मुझे 2 कट सिर्फ लगाने हैं. 2 कट्स का मतलब है दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. डन. ऑल राइट. नाउ 7, 5 वाला जो साइड है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है और 5 ही आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये वाला जो फेस है, इस पे कलर कौन सा हो रहा है? रेड. सो दिस इज कलर्ड एज रेड. Then 5 into 3, this is 5 into 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 5 into 3 is painted in green. So this is painted in green. And this, which is 7 into 3, this is painted in blue. All right. अब क्या पूछा? There are exactly 15 small cubes with no face painted on any face. No paint on any face. No faces painted. अगर आप इस क्यूब को ऐसे देखो, यहाँ पे 2 कट्स आपने लगाए हैं, तो आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक था. आपने जैसे ही 2 पीसेस करे तो वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने का मतलब है ये सारा आउटर है, ये सेपरेट हो गया, ये सारा आउटर है, ये सेपरेट हो गया. ये वाला जो लाइन है, the cube should be present in this line, and in this particular line how many floors do we have? 1, 2, 3, 4, 5 floors. 5 floors पे कौन कौन से पे होगा? 1, 2, 3, 4, 5 है ना. तो इस वाले फ्लोर पे होगा, इस वाले फ्लोर पे होगा और इस वाले फ्लोर पे ही होगा. टॉप पे तो नहीं हो सकता कि नो फेस पेंटेड. सो 5, 5 and 5, it will give me 15. So this is absolutely correct. Statement number 1. There are exactly 6 small cubes with exactly 2 faces painted, one in blue and the other one in green. Blue और green पे अगर आप बात करो तो ये वाला वो फेस बन के आ रहा है, ब्लू एंड ग्रीन वाला. एक यहाँ पे बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा और एक इसके ऑपोजिट वाला बनेगा. तो देयर वुड बी ओनली 4. हियर इट इज गिवन 6 बट इट वुड बी ओनली 4. सो दिस इज रूल्ड आउट. वंस यू हैव द डायग्राम रेडी विथ यू, तो आपको इनको देखने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप बोलो कि आप एग्जाम में ट्राई कर रहे हो तो मैं बोलूंगा चलो 2 मिनट में बनाओ, बट 2 मिनट इज अगेन इनफ टाइम फॉर अस. विच वन इज करेक्ट? ओनली वन. Let's look at the next question. A solid cube is painted yellow in all of its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces by making the minimum number of cuts. Minimum number of cuts आप क्या समझते हो? Whenever this term is mentioned, you should understand that if I'm doing minimum number of cuts and I want to get to the 60 number of pieces, I have to distribute my cuts as uniformly as possible. Cuts uniformly distributed, है ना. जितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे उससे ही मिनिमम नंबर ऑफ कट से आपको मैक्सिमम पीसेस मिलेंगे. अब इसका फॉर्मेट क्या है? एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस, एंड देन हियर वी वुड बी राइटिंग कट्स एंड हियर आई कैन राइट द पीसेस. बट 60 को पहले आप प्राइम फैक्टराइज करो. तो 60 कैन बी रिटन एज, फिर 3 से जाएगा 5 एंड विथ 5 इट इज 1. ओके, सो यू कैन सी वी हैव अ 5, 3 और 2 into 2 4. So 3 into 4 into 5,
दैट इज वन सिनारियो। अब अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं, देन डेफिनेटली द नंबर दैट आई हैव 5 इंटू 3 इंटू 40, ये मेरे क्या बन रहे हैं, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 5 इंटू 3 इंटू 4 शुड गिव यू 60। ऐसा हो रहा है क्या? यस। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 इज बेसिकली 60 पीसेस। अब अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ कट्स वुड बी वन लेस। नंबर ऑफ कट्स वुड बी वन लेस मीन्स 4 कट्स, 2 कट्स, 3 कट्स। किसी भी एक्सेस पे चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ कट्स इज बेसिकली 4 plus 2 plus 3, which is 9 cuts. The minimum number of cuts is 9, absolutely true. The number of smaller pieces which are not painted on any face is 6. चेक कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था not faces on any, not painted on any face, इसका फॉर्मूला क्या है? n minus 2, n, 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 n minus 2, n minus 2, so 5 minus 2 into 3 minus 2 into 4 minus 2, क्या बनेगा? 3 into 1 into 2, which is 6 pieces, और the number of smaller pieces would be 6. Both are absolutely correct. इसको अगर आपको वीडियो फॉर्मेट पे देखना है या इन टर्म्स ऑफ डायग्रामेटिक फॉर्मेट पे देखना है, तो आप एक डायग्राम बना लो जहां पे आपने इतने इतने कट्स लगाए हैं। तो मान लो ये रहा मेरा डायग्राम। ऑलराइट, नाउ आई नीड टू पुट 4 कट्स। 1 2 3 4, 4 कट्स हो गए। नेक्स्ट 2 कट्स, सो 1 2, देन 3 कट्स, 1 2 3। अब जरा देखो, आपके पास जो पीसेस बन के आएंगे, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं और इसको सेपरेट कर दूं, तो इस मिडिल वाले फ्लोर पे ही होंगे। मिडिल वाले फ्लोर पे कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। इस वाले फ्लोर पे पॉसिबल है ना वो, और इस वाले फ्लोर पे सिंस यू आर सेपरेटिंग दीज एलिमेंट्स आउटसाइड, तो 6 ऐसे क्यूब्स होंगे, एंड दैट इज हाउ वी कैन लुक एट दीज टर्म्स। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड, this was all about your PYQ. This we have a homework question and this is our Telegram link. आप इससे join कर सकते हो हमारे Telegram पे, because we have few full length tests coming up. Out of the 10 full length tests that we are providing as part of our paid course, one full length test we would be providing on our Telegram as well and a detailed solution on YouTube as well. ये हमारे YouTube subscribers के लिए बिल्कुल free of cost है. That is going to be FLT3. So this would be provided free of cost to our YouTube subscribers. But ये जो the paper है, ये कहाँ पे प्रोवाइड होगा? टेलीग्राम चैनल पे। जो और अपडेट्स हैं कोर्स से रिलेटेड, कुछ भी हमारे एंड पे नया इनिशिएटिव आता है, हाउ वुड यू बी अपडेटेड? ओनली व्हेन यू जॉइन दिस। तो लेट्स जॉइन दिस, बट लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल क्यूबॉइड्स ईच ऑफ डायमेंशन 1 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter that are required to form a cube? एक 1 centimeter, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर डायमेंशन का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेसिकली ये एक क्यूबॉइड है। कितने ऐसे लगेंगे सो दैट यू मेक अ क्यूब? ट्राई करो इसे। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, बट आई फील कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इसको जरा खुद पे ट्राई करो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द पॉसिबल फिट हियर। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल. The link is already provided. We don't have a foundation course for 2026 students as of now. This is only for 2027 students currently. अगर कोई 2027 के लिए prepare कर रहा है, definitely you can join. Crash course is somewhere wherein this test series is also included in it. All the lectures are already included in the crash course. The practice sheets topic wise is already included. But इसके बाद अब आप crash course में भी enroll करोगे तो आपको ज़्यादा benefit नहीं होगा। मतलब being very honest with you people, because you have a lot of things going on and it is not just about consuming the content. It is all about retaining that concept as well. जो भी content आप अभी consume करोगे, तो it is more of कि आप उतना ही पढ़ो जितना आप retain कर पाओ और एग्जाम पे आप उसको productively execute कर पाओ। ठीक है? It is not just about कि आप content कहीं से भी बस देख लो कि ये सारी चीजें हैं और उसको start कर दो। No,
Work on your basics, work on PYQs, that will definitely help you. All right, let me know how was today's session. Take care, bye bye. Happy learning, everyone.